ایک اللہ والے طوائف زادی اور اس کا ظالم باپ اور ایک گندی مچھلی جو کہ بولنے لگی۔ ایک بہت ہی انوکھا اور نیا واقعہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، لہٰذا اس واقعہ کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ ایک لڑکی بد کردار تھی اور گاؤں میں حسین و جمیل مشہور بھی تھی۔ اس کا کام تھا عورت کا گھر برباد کرنا، کیونکہ اس کے باپ نے اس کی ماں کو دھوکہ دیا تھا۔ ایک عورت کے چکر میں ماں کے دکھ کو اس نے دماغ میں رکھ لیا تھا۔ باپ دوسری عورت میں مصروف رہتا، گھر ہی نہیں آتا تھا۔ پھر اس نے چپ کر کے شادی بھی کر لی۔ اس طوائف لڑکی نے سوچ لیا تھا کہ میں وہی کروں گی جو میرے باپ نے میری ماں کے ساتھ کیا۔ میں کسی کو خوش نظر نہیں آنے دوں گی۔ اس کی ماں کو کوئی بیماری نہیں تھی، پر وہ اچانک مر گئی۔ ماں کے مرنے کے بعد اس نے خود سے وعدہ کر لیا کہ میں اسی طرح ہر عورت کا گھر خراب کروں گی۔ میری ماں تڑپ تڑپ کر اس دنیا سے گئی۔ اپنے باپ سے بدلے کے لیے اس نے ہر عورت سے دشمنی مول لے لی۔ اس کے باپ نے ویسے بھی اس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو اس نے چپکے سے اور غیر مردوں سے دوستی کر لی۔ اس کا نشانہ بنتے تھے شادی شدہ مرد۔ وہ خوبصورت تو تھی، لمبے گھنے بال تھے۔ اپنی اداؤں سے وہ مردوں کو گھائل کرتی تھی۔ وہ چھپ کر ان مردوں سے ملا کرتی تھی اور اسی طرح اس جگہ کے لوگ اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اس کے پاس جانے لگے، جبکہ اس سے پہلے وہ گاؤں خوبصورتی کے نام کے ساتھ ساتھ اللہ کے ذکر سے بھی جانا جاتا تھا، کیونکہ ہر شخص اللہ کے قریب رہتا تھا۔ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ وہاں کے جو مرد تھے وہ کم عمری میں ہی شادی کر لیا کرتے تھے، اس لیے ان کی جو بیویاں تھیں وہ ان کے ساتھ خوش ہو کر زندگی گزار رہی تھی، کیونکہ وہ گناہوں سے بچتے تھے۔ پر سب بدل گیا۔ مسجد خالی ہو چکی تھی، اب تو سناٹا تھا، کیونکہ کچھ نمازی اس بد کردار لڑکی کے جال میں پھنس گئے تھے اور اس لڑکی کی حرکتوں سے مرد اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ رات گزارنا چاہتے تھے۔ گاؤں کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ وہ لڑکی تو صرف اپنے باپ کی دشمنی میں یہ سب کر رہی تھی۔ اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے گندے عمل سے کس طرح نحوست پھیل رہی تھی۔ وہ یہ کام اپنے باپ کی موجودگی میں نہیں کرتی تھی۔ جب وہ دیکھتی اس کا باپ کام کرنے کے لیے باہر گیا ہوا ہے تو اس طرح وہ گھر سے باہر نکلتی اور اس کی ایک سہیلی جو اس کے گھر سے بہت دور رہتی تھی، اس نے اپنی سہیلی کو راز بتا دیا تھا۔ اسی کے گھر جا کر وہ تیار ہوتی اور وہیں پر مرد اسے ملا کرتے تھے۔ یہ ایک مرد کی کہانی ہوتی تو عورت کہتی کہ میرے شوہر کو کس نے اپنے جال میں پھانس لیا، لیکن یہ کہانی اس گاؤں کے ہر مرد کی ہو گئی تھی۔ اس کے باپ کو خبر نہ ہوتی جب وہ باہر جاتی تھی۔ گاؤں کے مردوں کے پاس اپنے کھیت تھے، اپنی زمینیں اور جانور تھے، اور گاؤں میں جو کھاتا پیتا مرد ہوتا وہ اس کا سب سے بڑا عاشق بن بیٹھتا۔ وہ اس پر ساری دولت لٹانے کو تیار تھا۔ وہ طوائف زادی بھی اس سے فائدہ اٹھا رہی ہوتی۔ ایک دن اس کا باپ گاؤں سے باہر گیا ہوا تھا تو 2 دن کے بعد اس کو واپس آنا تھا۔ جب وہ 2 دن کے بعد واپس آ رہا تھا، اس کی بیٹی نے رات غیر مرد کے ساتھ گزاری۔ ستیلی ماں تو ویسے ہی اس کے معاملات میں بولتی نہیں تھی، لیکن اس رات جب وہ گھر سے باہر تھی تو وہ اس کا پیچھا کرنے لگی۔ دیکھا تو وہ غیر مرد کے ساتھ تھی۔ اس کا بس نہ چلا کہ وہ اس لڑکی کی جان ہی لے لے، اور اس نے سوچ لیا کہ آنے دو اس کے باپ کو، اس کو تو پکڑوا کر ہی دم لوں گی۔ اس نے ایک ترکیب سوچی۔ اس شخص کی بیوی کو کسی اور کے ہاتھ سے پیغام بھیجا، تمہارا شوہر کیا کرتا پھر رہا ہے۔ اس کی بیوی کو جب پتا چلا تو وہاں آ گئی۔ اس نے جب اپنے شوہر کے ساتھ اس طوائف زادی کو ایسے دیکھا تو اس کو خوب بددعائیں دینے لگی کہ تو نے میرے گھر کو اجاڑ ڈالا، اللہ کرے تو بھی برباد ہو۔ وہ کہنے لگی کہ تم اپنے شوہر سے ہی پوچھو نا کہ وہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ میں نے تمہارا گھر نہیں اجاڑا، تم خود اجاڑ رہی ہو۔ وہ اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی۔ 2 دن کے بعد جب اس کا باپ گھر آیا تو ستیلی ماں تو پھولی پڑی تھی۔ اس کے باپ کو آتے ہی کہا، تمہاری بیٹی کہیں پر چلی جاتی ہے، تم ذرا اس کی خبر لو۔ تم جب کام پر جاتے ہو وہ گھر سے غائب ہوتی ہے، وہ بہانے سے اپنی سہیلی کے گھر جاتی ہے، معلوم تو کرو آخر وہ کیا کرتی ہے۔ جوان جہاں لڑکی ہے، کوئی غلط قدم نہ اٹھا رہی ہو۔ بیوی کے بھڑکانے پر باپ نے اپنی بیٹی کے آنے کا انتظار کیا۔ آج جو کہ وہ بہت خوش تھی کیونکہ اس نے ایک بڑا ہاتھ مارا تھا اور ایک امیر زادے پر اس نے تیر چلایا تھا۔ اسے بہت سا پیسہ ملا تھا جو وہ لے کر اپنے گھر آئی۔
तो बाप गुस्से में उस पर चिल्लाया, कहाँ फिरती रहती हो? तेरी माँ बता रही थी तुम मेरी गैर मौजूदगी में घर से गायब रहती हो। बेटी ने कुछ न कहा और अपने कमरे में चली गई। बाप को और ज्यादा तैश आ गया। वो उसके कमरे में आया और दरवाजा बंद करके उसको मारने लगा। वो लड़की खामोशी से मार खाती रही, लेकिन अंदर ही अंदर जहरीली नागन बन रही थी। जब उसका बाप उसको मार मार के थक गया और उसका कोई असर ना हुआ तो उसको जमीन पर फेंक कर बाहर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। वो जो आज बहुत खुश थी कि उसने एक और औरत से उसका शौहर छीना था, वो बाप की मार पर पहली बार हिल सी गई। वो तो समझ रही थी कि मैं दूसरे मर्दों के पास जाकर अपने आप को दिली तस्कीन पहुंचाऊंगी, लेकिन यहाँ पर तो उसके अपने बाप ने ही ऐसा कर दिया। उस दिन वो बहुत रोई, माँ को याद किया। अचानक दिल से निकला, ऐ अल्लाह, एक बाप इतना संगदिल हो सकता है? पहले मेरी माँ के साथ गद्दारी की और आज अपनी इसी बीवी के कहने पर मुझे इस कदर मारा। मैंने कभी तुझे नहीं पुकारा, न कभी नमाज पढ़ी, लेकिन क्यों आज दिल चाहता है कि मैं सजदे में गिर जाऊं, नमाज पढ़ूं। लेकिन नमाज तो उसे किसी ने सिखाई नहीं थी, बस दुआ मांगती रही और सो गई। सुबह उसकी आंख खुली, दरवाजा तो बंद था। उसे भूख लग रही थी। वो रोने लगी, खाने को कुछ दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। तभी बाहर से उसकी माँ की आवाज आई, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, यहाँ पर भूखी पड़ी रहो। तुम्हारा बाप काम पर जा चुका है और तुमने जो किया है उसकी सजा तुम्हें 3 दिन तो भुगतनी ही पड़ेगी। उसे समझ नहीं आया कि ये कैसी आफत उस पर टूट पड़ी है। उसकी माँ होती तो क्या ये नौबत आती। वो जितना खुश थी अब अपने आप से चिढ़ खाने लगी। वो सोचने लगी कि मैंने बाप को नीचा दिखाने के लिए खुद के साथ क्या क्या नहीं किया। मेरी माँ जिंदा होती तो मुझसे खुश होती। मैं तो इतनी गुनाहगार हूँ, मेरी तो दुआ भी कबूल नहीं होगी। वो ये कह ही रही थी कि उसके कमरे की खिड़की पर खटखट हुई। उसने खिड़की खोली तो एक बुजुर्ग थे जिनका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। कहा, ये लो खाना खा लो, तुम्हारे लिए भेजा गया है। वो कौन थे जानना चाहती थी, पर उसे भूख बहुत ज्यादा लगी थी। उसने वो थैला ले लिया और खाना खाने लगी। खाना खाकर उसकी जान में जान आई। जब उसने पलटकर खिड़की की तरफ देखा तो कोई नहीं था। वो जो भी थे उन्होंने उसकी बहुत बड़ी मदद की थी। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि मैं इतनी गुनाहगार हूँ, हकार हूँ, बदकार हूँ, फिर भी मेरी क्यों मदद की गई? मैंने कौन सा ऐसा अमल किया? सोचने पर मजबूर हो गई। उसका बाप घर आया। उसने दरवाजा खोला तो सामने बैठी दुआ मांग रही थी। उसको दुआ मांगता देखकर उसके बाप ने कहा, बहुत खूब, बुरे और घटिया काम करके तू अल्लाह से माफी मांग रही है कि तूने कितने मर्दों के साथ अपनी रातें बर्बाद की हैं। उनकी बीवियां तेरी शिकायत कर रही थी और तुझे इस गांव से निकालना चाहती हैं। अब तू ही बता तुझे क्या सजा दी जाए? वो कहने लगी, मैं ये गांव छोड़ दूंगी, अब मेरा दिल यहाँ नहीं लगता। अच्छा, एक रात में तू बदल गई, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सच कहती हूँ बाबा, मेरे दिल में अब कुछ नहीं है। मैं सब अपने साथ ये सब कुछ इसलिए कर रही थी कि तुमने मेरी माँ को बहुत तकलीफ दी है। औरतों से मुझे नफरत हो गई थी, इसलिए मैं उनके शौहरों को बीवियों से दूर करती रही। मैं भी गैर औरत की तरह मर्दों की जिंदगी में आती, जिस तरह अपनी दूसरी बीवी के साथ मिलकर तुमने मेरी माँ को दर्द दिया। बस यही चीज मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं भी वही करूं और मुझे सुकून भी मिलता था किसी बीवी को तड़पता देखकर। वो सच बोल रही थी ताकि उसका बाप उसकी बात को सुनकर उसे गले से लगाएगा, पर ये तो उल्ट हुआ। वो अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। साथ ही उसकी दूसरी बीवी भी उसका मजाक उड़ाने लगी। देखो, इंतकाम के लिए किसी के साथ रात गुजारने लगी है। अरे ये कौन सा तरीका है, अपने ही जिस्म का सौदा कर दिया। अच्छा, पैसे कितने कमाए हैं? ला दिखा अपनी कमाई। वो लड़की कपकपाने लगी क्योंकि पैसे तो उसके पास थे जो उसने छुपा कर रखे हुए थे। उसके बाप ने कहा, दिखा अपनी दौलत। वो अपने बाप को मनाने के लिए उसने कहा, हाँ मेरे पास पैसे हैं, बहुत से पैसे हैं। उसने उसके हाथ में एक पोटली रखकर कहा, ये देखें आप। उसके बाप की राल टपकने लगी। कहने लगा कि इतना सारा पैसा, तू तो मेरे लिए बड़ी कीमती है। ख्वामखा मैंने तुझ पर हाथ उठाया, बस तेरी उस माँ के भड़काने पर हाथ उठा दिया।
अब अच्छा तुझे कोई नहीं रोक टोक करेगा। मेरी बच्ची तू जहाँ दिल चाहे जा सकती है। आज से तेरा बाप तेरे साथ है। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि आखिर उसका बाप ये क्या कह रहा था। उसने गिलगत की तरह रंग कैसे बदला। वो बोली, आप क्यों चाहते हैं कि मैं ये काम ना छोड़ूं, जबकि मुझे लगता है आपकी गैरत जाग जाएगी। हाँ, कल तेरे ऊपर हाथ उठाया था, गुस्से में उठाया था, और शायद तूने जो दुआ की उसने मेरे दिल को नरमो मुलायम कर दिया। क्योंकि मेरी बेटी, मैंने तेरी हैसियत पहले नहीं जानी थी, पर अब मेरे सामने तेरा सच आ गया है। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। मेरी बच्ची, तू जिसके साथ चाहे रिश्ता बना सकती है, बस अपनी चीजें पैसे वगैरह मेरे पास रखना। अब तेरा बाप तुझे कुछ नहीं होने देगा। बेटी बोली, लेकिन आपने ही तो कहा था उन मर्दों की बीवियां मुझे इस गांव से निकालना चाहती हैं। वो बोला, अगर तू यहाँ से निकलेगी तो क्या हुआ, मैं तेरे लिए शानदार सा महल तैयार करवा दूंगा। जब बाप ही उसे कह रहा था तो फिर वो क्यों इस गुनाह को छोड़ती। वैसे भी पैसों की जरूरत तो सबको होती है, और अब तो उसका बाप भी उसका साथ दे रहा था। उसने कहा, चलो फिर अपने ग्राहकों के पास। वो लड़की ये भूल गई कि वो किस तरह अल्लाह से माफी मांग रही थी, और वो जो पहले कर रही थी तो वो तो गुस्से में कर रही थी। उसके बाप ने इजाजत दे दी थी। वो तैयार होकर घर से निकली तो उसकी सौतेली माँ तो जलपाओं वाली बिल्ली बन जाती और अपनी सौतेली बेटी को एक तवाइफ की शक्ल में देखकर खुश होती। वो लड़की अपनी खूबसूरती की वजह से पहले ही मशहूर थी, लेकिन अब बाप की ढील देने पर वो खुले आम ये काम करने लगी, और गांव का हर जवान आदमी उसका दीवाना था, और शादीशुदा मर्दों की बीवियां तो सख्त परेशान थी। ये तवाइफजादी तो हद पार कर रही थी। एक बीवी जो कि बहुत नेक थी, उसने दुआ की कि ऐ अल्लाह, ये हमारा गांव कैसा हो गया है, तू रोक इस काम को। ये गांव तो ऐसा नहीं था, यहाँ पर तो तेरी इबादत की जाती थी, और अब तो यहाँ पर लोग इयाशी कर रहे हैं। कौन रोकेगा इस गंदगी को। ऐ अल्लाह, तो हमारे उजड़ने वाले घर बचा ले। इधर वो तवाइफजादी तो मजे लूट रही थी। दोनों हाथों से नाजायज काम से हासिल की हुई दौलत को वो बेगैरत बाप के हवाले करती, क्योंकि उसको भी पैसे मिल रहे थे। उसका बड़ा सा घर था जिसकी वो मालकन थी। बाप ने अपना काम छोड़ दिया था। उसकी बेटी जो उसे पाल रही थी वो घर में ही रहता। एक दिन किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। उसने दरवाजा खोला तो वहाँ पर एक बहुत ही शानदार से कपड़े पहने अल्लाह वाले खड़े थे। अल्लाह वाले बड़ी उम्र के थे, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत जिनके दिलों में होती है उनका चेहरा चमकता है, हमेशा जवान रहता है, चाहे वो 100 साल के ही क्यों ना हो। अल्लाह वाले की शख्सियत देखकर उसकी आंखें चमक गई। उसने कहा, जी किससे मिलना है। अल्लाह वाले बोले, आपकी बेटी से। मेरी बेटी यहाँ तो नहीं होती, वो किसी और घर में होती है, तो आप उससे मुलाकात करना चाहते हैं। या फिर बाप ने आंख मारते हुए कहा, मुलाकात ही होगी। अल्लाह वाले ने कहा, उनकी खूबसूरती के बहुत ही मैंने चर्चे सुने हैं, इसलिए बहुत दूर से आया हूँ। अपनी बेटी की तारीफ को सुनकर बाप को और क्या चाहिए था। वो तो अपनी बेटी को वैसे ही बेचने पर तैयार था। उसने कहा, मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। वो अल्लाह वाले को अपनी बेटी के घर ले गया, जो कि गांव के बाहर एक झरने के ऊपर बना हुआ था। नजारा बड़ा हसीन था। बाप ने मुलाजिम से कहा, बुलाओ मेरी बेटी को। बाप को बड़ा घमंड था और बेटी बन ठन कर तैयार होकर वहाँ आई। इस तवाइफजादी ने अपने बाप के साथ एक और शख्स को देखा तो उनके पास चली आई और कहा, क्या कीमत देंगे आप। अल्लाह वाले ने कहा, आपकी तो क्या ही बोली लगाऊं, ऐसा हुस्न तो मैंने आज तक नहीं देखा। वो अल्लाह वाले का हाथ पकड़ने लगी। अल्लाह वाले ने हाथ पीछे कर लिया। वो चौंकी के हाथ क्यों हटाया। बाप ने कहा, मैं चलता हूँ। वो बाहर निकला तो बेटी बोली, अब चले कमरे में। अल्लाह वाले ने कहा, नहीं, बाहर चलते हैं, इतना खूबसूरत झरना है। तो वो उनके साथ बाहर आ गई। वो कहने लगी, देखा कैसी प्यारी जगह है, ये सब मैंने अपनी मेहनत से पाया है, लेकिन आप मुझे बाहर लेकर क्यों आए, क्योंकि मर्द तो मुझे मेरे घर में ही मिलते हैं। अल्लाह वाले बोले, मैं चाह रहा था कि तुम कुदरत के नज़ारे देखो। झरना कितना साफ है, एक गंदगी नहीं है यहाँ पर। ये जगह इस गांव की सबसे खूबसूरत जगह है। अच्छा ये तो बताओ, इस पानी में मछलियाँ हैं? हाँ, बहुत सारी मछलियाँ हैं, लेकिन छोटी छोटी रंग बिरंगी हैं, बहुत ही प्यारी सी हैं। तो क्या तुम इस पानी में से कोई मछली निकाल सकती हो? मैं कैसे निकाल सकती हूँ, मेरे नौकर पकड़ते हैं मछलियाँ। आप कहें तो मैं नौकर को बुला लेती हूँ।
अल्लाह वाले ने कहा नहीं, तुम निकालो। वो भी इस पानी के अंदर हाथ डालकर। उसकी हंसी निकल गई। उसने कहा ऐसा कैसे मुमकिन है? अल्लाह वाले कहने लगे अगर मैं निकाल कर दिखाऊं तो क्या करोगी? उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, बहुत से मछेरे हैं जो यहाँ से मछलियाँ पकड़ते हैं। अल्लाह वाले बोले मैं मछली पकड़ूंगा नहीं, बस तुम देखती जाओ। अल्लाह वाले उस झरने के पास गए और कहा इस पानी की सबसे गंदी मछली तुम बाहर आ जाओ। अल्लाह वाले के लफ्जों में जादू था। एक मछली ने पानी के अंदर से सर निकाला और उछलकर अल्लाह वाले के हाथ में आ गई। वो औरत डरकर पीछे हटी। वो मछली इतनी गंदी थी कि उसको देखकर उसे घिन आ रही थी। उसने कहा ये कितनी ज्यादा गंदी मछली है और ये आपने हाथ में क्यों ली हुई है? अल्लाह वाले ने कोई जवाब ना दिया, बल्कि वो मछली कहने लगी अपने आप को देख और फिर मुझे बोल। इसके बाद वो बोलने वाली मछली हाथ से निकलकर पानी में कूद गई। इसके पानी में जाते ही पूरे का पूरा पानी गंदा और मैला हो गया। वही जगह अभी इतनी खूबसूरत लग रही थी, उसको देखकर दिल खराब होने लगा। वो हैरान होकर सारी चीजों को बदलता देख रही थी। उसने कहा ये हो क्या रहा है? अल्लाह वाले अब तक खामोश थे। वो मछली फिर से पानी से बाहर उभरी और अल्लाह वाले के हाथ पर उछल कर आ गई और कहने लगी तुम जरा खुद को देख, अपने सरापे पर नजर डाल। ये कितना खूबसूरत गांव था जहां पर हर कोई अल्लाह का नाम लेने वाला, जिक्र करने वाला था, लेकिन तूने यहाँ पर गंदगी फैलाकर सबको अल्लाह पाक के जिक्र से भी हटा दिया। हलाल रिश्तों को छोड़कर हराम रिश्तों के मजे लेने लगी। जिस तरह एक गंदी मछली पानी को गंदा कर देती है, इस तरह तू भी एक गंदी मछली है। तूने इस गांव को गंदा कर दिया है। वो तो एक मछली को बोलता देखकर वैसे ही आंखें फाड़े खड़ी थी। उसने कहा पहले ये तो बता कि तू बोल कैसे रही है? तू तो एक बेजुबान जानवर है। उस मछली ने फिर से जवाब दिया ये जो खड़े हैं ये कौन है? तू इनको जानती भी है? वो तवाइफजादी बोली ये तो मेरे ग्राहक हैं और मेरे खरीदार हैं। मछली ने कहा ये अल्लाह के नाम लेवा है, अल्लाह वाले हैं और अल्लाह के महबूब बंदे हैं। इनके हाथों में हर बेजुबान को जुबान मिल जाती है क्योंकि ये अल्लाह वाले हैं और दिल के सच्चे और नेक कामों में सबसे आगे हैं। तो वाइफ कहने लगी एक अल्लाह वाले हैं। उसका दिल फिर से कांपा। वो दिन याद आ गया जब उसने रोकर दुआ मांगी थी। उसकी आंखें शर्म से झुक गईं। वो शर्म से पानी पानी हो गई। अल्लाह वाले जो अब तक खामोश थे और मछली को बोलता देख रहे थे, आपने कहा मेरे सामने क्यों नजरें झुकाती हो? क्या तुम्हें उस अल्लाह का खौफ नहीं? वो हाँ में सर हिलाने लगी। अल्लाह वाले ने कहा ये बताओ कि ये तुम काम क्यों कर रही हो? उसको याद आने लगा। उसने कहा मैं ये काम अपने बाप से बदला लेने के लिए करती थी क्योंकि उसने मेरी माँ को धोखा दिया था, पीठ पर वार किया था, नाजायज रिश्ता था पराई औरत के साथ। पर मैं ये काम छोड़ना चाहती थी क्योंकि एक दिन मेरे बाप ने मुझे बंद कर दिया था और एक बुजुर्ग ने कमरे की खिड़की से मुझे खाना दिया था। तब से मेरे दिल में एक रोशनी सी भर गई। मुझे नमाज नहीं पढ़ना आती थी लेकिन मैं चाहती थी कि मैं सर झुकाऊं। अल्लाह वाले बोले तो फिर तूने क्यों न किया सजदा? वो बोली मैंने अपने बाप को अपनी सारी असलियत बता दी थी। मैं समझ रही थी कि मेरा बाप मुझसे कहेगा ये काम छोड़ दो, लेकिन उसने कहा तुम ये काम करोगी, जरूर करोगी। एक बाप के कहने पर और सिर्फ उसे ही राजी करने पर ये काम करने लगी और आज वो मेरी वजह से बैठकर खाता है। अपने बाप से बदला लेने के लिए तुमने इस काम को अपनाया। कितनी औरतों के घर तुमने उजाड़ दिए, कितने शोहरों को नापाक किया। इसके बाद जबकि तुम्हें खुद को बदलना चाहिए, तुम्हें इस गंदे काम से जान छुड़ा लेनी चाहिए। अपने बाप की खुशी के लिए तुमने फिर से खुद को गंदा कर दिया। जिस तरह ये गंदी मछली पानी को नापाक कर रही है, गंदा कर रही है, इसी तरह तुम भी इस गांव को नापाक कर रही हो। अभी भी वक्त है, तुम माफी मांग लो। उसने कहा मैं तो माफी मांग लूंगी, लेकिन मेरा बाप मुझसे ये काम नहीं छुड़वाएगा, वो बहुत जालिम है। अल्लाह वाले ने कहा तुम चाहती हो कि तुम इस गंदगी से पाक हो जाओ? उसने कहा जी हाँ हजरत, मैं चाहती हूँ क्योंकि मेरी रगों में मेरी माँ का खून दौड़ रहा है। कभी कहीं न कहीं मुझे ये बात खटकती है कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ। मेरा बदला तो अपने बाप से था, फिर मैं क्यों किसी और के घर को तबाह कर रही हूँ? अल्लाह वाले ने कहा ठीक है चलो हम गाँव चलते हैं। इसके बाद आप उसे लेकर गाँव आ गए। वहाँ पर जितने मर्द हजरात थे जो अपनी बीवियों को छोड़कर उस तवाइफ के पास आए थे,
उन सबको जमा किया और बोले, तुम लोगों को अल्लाह ताला ने एक पाक बंधन दिया है। तुमने इस रिश्ते को भुलाकर तवाइफ को अपना सब कुछ दे दिया। तुम लोगों को इस बात पर शर्म आनी चाहिए। वो बोले, जब एक औरत इतनी खूबसूरत है और जवान है और हमें हर तरह से खुश करती है तो क्यों ना इसके पास आए। अल्लाह वाले ने कहा, ये तो बेहयाई की हद ही हो गई। तुम्हारी बीवियों ने तुम्हें क्या कुछ नहीं दिया। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर तुमने निकाह के 3 बोल बोले तो तुम ये रिश्ता निभा क्यों नहीं सके। आखिर क्या कमी रही तुम्हारी जिंदगी में। वो नेक बीवी आ गई। उसने कहा, हजरत ये सच है, जब इंसान शैतान के रास्ते पर चलता है तो उसको लज्जत चाहिए होती है। जो शख्स हलाल रिश्ते से सुकून ना पा सके तो अल्लाह ताला उसको इस तरह भटकाता है जिस तरह ये लोग और मेरे शौहर भटके हैं। अल्लाह वाले ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। ऐ लड़की, तुमने अपनी माँ के लिए अपने बाप से बदला लेने के लिए ये सारे काम किए, जबकि तुम्हारा दिल नहीं चाहा। फिर भी तुमने अपने बाप के लिए खुद को बेच दिया। फिर तुम इस रंगीनी में लग गई। तुम जानती हो तुम्हारी माँ कौन थी। तुम्हारी माँ इस गांव की सबसे नेक बंदी थी। कभी उसने नहीं चाहा कि उसकी औलाद इस रास्ते पर चले, लेकिन तुमने अपनी माँ को दुख पहुँचाया। अरे बाप से भी बढ़कर अपने आप को तुमने नुकसान पहुँचाया। तुम्हारी माँ की नेकियां थी कि मैं इस गांव में आया। वो मेरे ख्वाब में आई थी। उसने कहा, ऐ अल्लाह वाले, मेरी बेटी को बचा लीजिए। तभी उस दिन खिड़की पर मैं तुम्हें खाना देने आया था। उस खाने को खाकर शायद तुम्हारे अंदर की इंसानियत जाग गई थी और तुम्हारे शैतान जालिम बाप ने तुम पर फिर हमला किया तो तुम्हारे ईमान को डगमगा दिया। शैतान इसी तरह आग जलाता है और इंसान आग का एक घर बन जाता है, फिर जहन्नम में पहुंच जाता है। तुमने किसी को नुकसान पहुंचाया, तुम खुद होश में रहती। उस बाप ने जब तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ा, वो आदमी तुम्हारी माँ से भी यही काम करवाना चाहता था, लेकिन वो कभी बुराई की तरफ ना गई, इसलिए बेमौत मारी गई। तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ का गला घूटा था, मर तो गई पर उसकी रूह तड़प गई जब उसकी अपनी बेटी एक तवाइफजादी बन गई और सब उसको बदकिरदार कहने लगे। जब वो बदकिरदार कहलाई तो अपने बाप की खुशी के लिए खुद को सुकून पहुंचाती रही। खूबसूरत घर बनाने से खूबसूरत जिंदगी नहीं बनती। मछली की गवाही तो याद है ना। उसके बाद अल्लाह वाले को एक आवाज आई। उन्होंने पलट कर देखा तो उस शख्स ने कहा, अच्छा तुम वही हो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैं अपनी बेटी के साथ घर छोड़कर आया था। ये भीड़ कैसी लगा रखी है? फिर उसकी नजर अपनी बेटी पर गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मामले की नजाकत को वो समझ रहा था। उसने फौरन कहा, बेटी यहाँ इन लोगों के बीच खड़ी ना हो। अल्लाह वाले ने कहा, तू कैसा बाप है? तू कैसे इतना गिर सकता है अपनी जात से? बीवी को भी तूने एक तवाइफ बनाना चाहा और वो ना बनी तो तूने अपनी बेटी के साथ ये काम किया। वो बोला, हाँ तो मैं क्या करता। यहाँ के जवान मर्द ऐश की जिंदगी गुजार रहे थे। मेरे पास मेहनत करके भी एक पाई न बच पाती थी। इस दिन मुझे मालूम हुआ मेरी बेटी इस तरह काम करती है तो मैंने उसे बहुत मारा। फिर मुझे याद आया कि मैं तो अपनी बीवी को भी यही बनाना चाहता था, तो क्यों ना अपनी बेटी से ही ये काम करवाऊं। मैं बिला वजह अपने पेट पर लात क्यों मारूं? तो इसलिए फिर पलट कर अपनी बेटी की तरफ आया और इससे कहा, जो चाहे करो, बस पैसा मेरे हाथ में देना। उसने मेरी बात मानी। इस जगह की अब सबसे खूबसूरत तवाइफ है। ये जब हमारा काम इतना अच्छा चल पड़ा तो मैं तुम्हें इस काम को रोकने नहीं दूंगा। फिर उसने कहा, कोई है जो मेरी बेटी के महल में आना चाहता है? उस बेटी का हाथ उसने पकड़ा और उसे लेकर जरने वाले घर पर आ गया। अल्लाह वाले भी उसी जगह पहुंच गए। गांव वाले भी पीछे पीछे आ गए। वो यही चाह रहा था कि अपनी बेटी को डांट डपट कर उसके महल में वापस भेज दे, लेकिन उसकी बेटी अब नहीं चाहती थी कि वो फिर से इस गुनाह में घिरे। जालिम बाप को गुस्सा आ गया। वो तवाइफ को उसके घर में धकेल रहा था, लेकिन ये बात थी कुदरत की तरफ से कि वो घर में जा नहीं पा रही थी, क्योंकि अल्लाह वाले अब इसकी इस हालत को देखकर बहुत जलाल में आ गए थे। आपने पानी की तरफ देखा और दुआ की, अल्लाह रब्बे जुल जलाल, तू ही है बेहयाई को रोकने वाला, तू ही बड़ी इज्जत अजमत वाला है, तू हाकम है। एक बाप जो कि अपनी बेटी की इज्जत का मुहाफिज होता है, वही अगर अपनी औरतों से हराम काम करवाए
तो फिर तो तू ही इसे कोई सजा देगा। आपने दुआ की तो वो लड़की खुद ब खुद बाहर आ गई। वो बाप जो कि उस घर में धक्का मारकर घुस रहा था, उसको किसी अनजान ताकत ने घर के अंदर फेंक दिया और फिर पूरा घर पानी के अंदर गिर गया। वही मछली जिसने उस पानी को गंदा किया, वो पानी से बाहर आई। उसके नुकीले दांत थे जिनसे वो शख्स को खाने लगी। लड़की भी बाप को तड़प के मरता देख रही थी। इसके साथ ही सारे गांव ने आंखों से नजारा देखा। वो बाप इतने बड़े घर समेत पानी के अंदर डूब गया। उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। अब पानी साफ हो गया। इधर वो शौहर जो तवाइफ के साथ जिंदगी जी रहे थे, हमारे पास पैसा है, जवानी है, उनकी आंखें खुल गईं। बोले हम माफी मांगते हैं। आपने कहा अपनी बीवियों से माफी मांगो और इससे पहले अल्लाह से माफी मांगो। तुम अल्लाह के गुनाहगार हो। उन शौहरों ने अपने किए हुए गुनाहों की माफी मांगी। तवाइफ ज़ादी भी आंसू बहाती खड़ी थी। उसकी आंखें शर्म से पानी पानी थी। उसने कहा मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ। अल्लाह वाले, आज से मैं ये काम नहीं करूँगी। आपने इनमें से एक आदमी से कहा कौन इससे निकाह करना चाहता है। एक जो कि कवारा था, उसने कहा मैं हाजिर हूँ। फिर आपने उसका निकाह उस तवाइफ से करवा दिया। इस तरह आपने इन सब की जिंदगी को साफ और पाक कर दिया, जिस तरह वो पानी फिर से चमकता हुआ और रोशन हो गया था। प्यारे दोस्तों, आज का ये वाक़या आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर फरमाइएगा और जाते जाते इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। शुक्रिया।